کیا جائے۔ سنو ظالموں، بادشاہوں کے قلعے ویران ہو سکتے ہیں مگر اورنگ آباد کا یہ محبت کا قلعہ جو آنسوؤں کی بنیاد پر بنایا گیا، جو ہمارے خون پر بنایا گیا، وہ بادشاہوں کے محلات ویران ہو جائیں گے مگر اورنگ آباد کا منلس کا قلعہ صبح قیامت تک آباد رہے گا۔ میں مر جاؤں گا مگر یہ قلعہ رہے گا۔ تم اس قلعے کو کمزور نہیں کر پاؤ گے، میری لاش پر سے تم کو گزرنا پڑے گا اس قلعے کو کمزور کرنے کے لیے۔ میرے جسم کا ایک خون کا قطرہ میں بہا دوں گا مگر اورنگ آباد کے اس محبت کے اور اتحاد کے قلعے کو، ان ظالموں کو کمزور ہونے نہیں دوں گا۔ اس کی بنیادوں میں ہمارا خون ہے، ہمارے ارمان ہیں، ہماری محنتیں ہیں۔ کسی کو ٹکٹ نہیں ملا تو شیخ احمد میرے پاس آ کے بولا کہ صاحب ٹکٹ نہیں ملا مگر میرے آنسو اس جماعت میں ہے، میں کام کروں گا۔ میں شیخ احمد کو سلام کرتا ہوں۔ ناصر صدیقی آئے، میرے سے سینے سے لپیٹ کر روئے، مر کہا کہ صاحب اگر آپ کو ہم اپنے آنسو نہیں دکھائیں گے تو کیا کریں گے؟ میں نے ناصر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ فیضان میرے پاس آیا، نوجوان، بولا کہ سر میں اتنے سال سے کام کر رہا ہوں۔ میں نے کہا فیضان آپ تمام کو جماعت کی ذمہ داری دی جائے گی، تو ایسے بہت سے لوگ ہیں مگر یہ لوگ آپ کے ہمارے دشمن ہیں، یہ ہماری شناخت کے دشمن ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو اور ہم کو مل کر 15 تاریخ کے دن ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، یہ کمزور باکڑے پہلوان جن کے چڈوں میں سے مونڈے پلٹ گئے، وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھو الیکشن 15 کو ختم نہیں ہوگا، الیکشن چلے گا، لمبا چلے گا۔ اگر تم ناچو گے، کس کے اشارے پر تم کٹ پتلی بن کے ناچ رہے میں جانتا ہوں، تم ناچو، اس کے بعد تم کو معلوم ہوگا بھرتناٹیم اور تاتھیا کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں۔ ذوالفقار صاحب چار مینار کے اب موجودہ ایم ایل اے ہیں۔ پہلا بلدیہ کا الیکشن لڑے، این ٹی راما راؤ چیف منسٹر۔ اس وقت کے آندھرا پردیش میں این ٹی راما راؤ کے پاس 180 یا 90 ایم ایل اے تھے۔ پہلا الیکشن ہوا بلدیہ کا ایک لمبے عرصے کے بعد۔ ذوالفقار صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، سالار کے ساتھ، میرے مرحوم والد کے ساتھ۔ مجھے الیکشن جانے دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ تیلگو دیسم کے لوگ حیدرآباد کو بم لے کر آئے تھے، بم، اور پولنگ بوتھ کے پاس ایک ہجوم تھا۔ برقع پوش ہماری عزت دار ماں اور بہنوں کا بم پھینکا۔ پہلے بم دور پھینکے، ہماری ماں اور بہنیں تھوڑا سہمی مگر ہلی نہیں۔ پھر ایک بم لا کر ایک ہماری ماں کو لگا، پیر کو لگا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، پیر سے خون نکل رہا تھا۔ میرے والد مرحوم نکلے گاڑی سے اور کہا کہ پہلے ان کو لے جاؤ عثمانیہ ہاسپٹل لے جاؤ۔ تو اس بہادر ماں نے کیا کہا وہ میرے ذہن پر آج بھی ہے، میرے کان میں آج بھی الفاظ گونجتے ہیں۔ اس ماں نے کہا سالار پولنگ بوتھ یہی ہے، میں ووٹ ڈال کے دواخانے کو جاؤں گی، میرے کو ترازو کو ووٹ دینا ہے۔ سالار بولے نہیں، آپ جو بولے نہیں جاتی سالار، ووٹ ڈالنا ہے۔ خون بہ رہا پیر سے، لوگ اٹھا کر لے کر گئے۔ اس زمانے میں مشین نہیں تھی، بیلٹ تھا۔ اس بہادر ماں نے اپنے بیلٹ پر مہر مار کر اس کو بیلٹ پیپر میں ڈالا اور اسپتال گئی۔ وہ جب بم ڈالنے والے نظارہ دیکھے
बकेट में बम लाते थे, उसमें रेती रखकर, और जब देखे उस खातून की, उस माँ की बहादुरी को देखे, तो जो लाइन में खवातीन खड़ी थी वो अपने चप्पल उतार कर उनको मारना शुरू करे, वो अपने जूते छोड़कर भाग गए तेलुगु देशम वाले लोग। तो आपको वही काम करना है, वही बहादुरी के मजारे करना है। आज पूरी दुनिया जानती है दुश्मनी मंजलिस से क्यों है, क्योंकि एक मजलूम कौम की एक ताकतवर आवाज है। क्यों इम्तियाज जलील को हराया, क्यों असेंबली में नासिर सिद्दीकी को रोका? मकसद एक ही है कि आपके वोट की ताकत को कमजोर किया जाए। तो मेरी इज्जतदार मां और बहनों से भी अपील कर रहा हूं, आपने इस सरजमीन पर अपनी कोख से बहादुरों को पैदा किया, और मैं इन बहादुर बेटों को कह रहा हूं, पोलिंग के दिन अपनी माओं को शर्मिंदा होने मत दो, बहादुरी से और अमन को बिगड़ने मत दो, और अपने वोट का इस्तेमाल करो। पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा, 100% भी पोलिंग हो सकती है। आपको अपना एक एक वोट डालना है। और रुकिए भाई, और जो भी अगर कोई बाहर है, माने औरंगाबाद से बाहर है, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि आओ भाई, आकर अपना वोट डालो। अगर आप भारत में हैं या कहीं महाराष्ट्र में हैं और आप आ सकते तो आइए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। SIR होगा तो पोलिंग बूथ के ऊपर जो लिस्ट होगी वो प्रूफ होगा तुम्हारे वोट डालने का। तो मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है। और आप देखते हैं कि कैसे मुसलमान ठेला बंडी वालों को तंग किया जा रहा है, सताया जा रहा है, डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है, पीने के पानी का मसला है, सफाई का मौसर इंतजाम नहीं है। इन तमाम मसाइल के हल के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। और याद रखिए, तारीख गवाह है, दुश्मन हमेशा घर से आता है, बाहर से कोई नहीं आता। करबला का मैदान, उसके रेगजारों को अगर अल्लाह जबान देगा तो करबला के मैदान के रेगजार और दजल्ला के वो किनारा जो अहले बैत के खून से लाल हुआ, वो करबला की जमीन जिस पर शहजादे रसूल का, शहजादे जन्नत का खून गिरा, वो तुमको पुकार पुकार कर कहेगी कि औरंगाबाद की आवाम मारने वाले शहजादे जन्नत को मुसलमान थे, आले रसूल पर पानी बंद करने वाले मुसलमान थे, 6 महीने के बच्चे पर तीर चलाने वाले मुसलमान थे। मगर वो ये भी कहेंगे कि इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन को कटा दिया, मगर जालिमों के सामने अब उसको झुकने नहीं दिया। औरंगाबाद की आवाम, तुम गयूर आवाम हो, तुम तारीख का वो हिस्सा बनोगे कि तुम सारी दुनिया को पैगाम बता दोगे कि हम 2 बार हारे मगर तीसरी बार हम कामयाब होंगे, और उसके बाद हर बार कामयाबी होगी, हर बार कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, नौजवानों, खास तौर से सुबह सुबह अपने वालिद, वालदा, भाई बहन को लेकर पोलिंग बूथ को जाओ। उस दिन जरा जल्दी उठो और पोलिंग बूथ को जाओ। काली मोटरसाइकिल डाल के यहाँ कट वहां कट, क्या हो रहा, क्या हो रहा, ये नहीं निकलना। पोलिंग को जो दिखा तुम्हारा भाई, उन्हें बोलेंगा फिर आगे बढ़ो। पोलिंग करवाओ, जहां पे पतंग का निशान दिखा वहां बटन दबाइए। ये जो लोग आकर खुसखुस कर रहे, 1 2 ये कुछ भी नहीं है। जहां मशीन पर पतंग का निशान है, 4 मशीन होंगी हर प्रभाग में, बूथ में।
वहां पर पतंग का निशान दिखा, बटन दबाइए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। मेरी आप तमाम से दबन गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर अपनी पार्टी को कामयाब करिए। याद रखिए, कैंडिडेट ये नहीं है, कैंडिडेट आप हैं। ये कैंडिडेट नहीं है, आप कैंडिडेट हैं, क्योंकि आपने मजलिस को मजबूत किया, क्योंकि आपने मजलिस को मुकाम दिया। कैंडिडेट की अहमियत नहीं है, अवाम की एतमाद की अहमियत है। तो अवाम अगर साथ होगी मजलिस के, तो मजलिस के उम्मीदवार पूरे कामयाब होंगे। मेरी आप तमाम से गुजारिश है, और ख़ास तौर से अहले दिल से गुजारिश है, और ख़ास तौर से उन हजरात से जो रात के अंधेरे में उठकर अपने रब को मनाने की कोशिश करते हैं, मैं आपसे भी अपील कर रहा हूं कि अपनी दुआओं में मजलिस की कामयाबी के लिए दुआ करिए। हम यही चाहते हैं इस मिल्लत मज़लूमा को उसका मुकाम मिले जो दूसरों को मिल चुका है। हम यही चाहते हैं कि हमारी हिस्सेदारी हो। हम यही चाहते हैं कि हमारी आंख बंद होने से पहले हमारी पार्टी और उसके ऐसे लीडर बन जाएं जो आने वाले 50-100 साल तक आपकी रहबरी करें, आपकी क़ियादत करें। तो नौजवानों, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपना वोट का इस्तेमाल करिए। बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि सुबह के अवलीन सातों में जाकर आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। याद रखो आप, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। अल्लाह हमको इज्जत से नवाजता आया है और अल्लाह ही हमको कामयाब करेगा। ये जो दुम छल्ले, ये जो मेंढक हैं, ये जो मौसम के कीड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा खातिमा होगा सियासी। तुम्हारे अज़ाइम में तुम नाकाम साबित होगे, क्योंकि तुम उनके लिए काम कर रहे हो जो हमारे मजहबी तशक्कुस को खत्म करना चाहते हैं। बहुत हो गया। अब आपसे अपील है मेरे भाई कि आप मजलिस को कामयाब करिए। आपने किया, और मुझे यकीन है कि 15 तारीख के दिन आप पतंग के निशान पर बटन दबाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब और कामरान करेंगे। आप पूरे वोट डालेंगे ना? पोलिंग परसेंटेज 90% होगा, 90% होगा। बटन कहां पे दबेगा? बटन कहां पे दबेगा? कब से दबेगा? 7 बजे से शाम में 6 बजे तक। एक एक कोड को इस्तेमाल करिए। अगर कोई बाहर है तो बुलाइए। जितना वोट डालेंगे वो पैगाम जाएगा दिल्ली के बादशाह को, जिन्होंने ऐसा काला कानून बनाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप यहां पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जरा अपने सेल फोन की लाइट खोलिए ताकि चुन्नू मुन्नू को मालूम हो जाए कि हमारा इत्तेहाद कितना ताकत हो। खोलो, तुम्हें खोलो, पूरे खोलो, 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 खोलो। जरा पूरा वीडियो लेके भिजाओ इन लोगों को, वो बांकड़े पहलवानों को। ऊपर भी ऊपर, वो हो। अब आप इसका करना डाल के